A very good morning to all students. You know very well, in the last few videos of class 11th accountancy, we discussed and solved the various numerical problem of chapter number 7, depreciation. In the whole chapter, first of all, we solve the numerical problem, which includes the method of calculation of depreciation. There are basically two methods of charging depreciation. The first one is the original cost method and number second is a written down value method. Uh, when we are talking about the first method of depreciation, that is original cost method, so you know very well, under this method we charge the depreciation on the assets by this method at a fixed rate of depreciation, and the amount of depreciation will be charged on the original cost assets. But when we are talking about the written down value method of the depreciation, so in this method we charge the depreciation on a particular assets at a fixed percentage, but not on the original cost. It will be charged on the written down value, that is also known as the book value. What is the meaning of book value? The original cost minus depreciation. Okay. And you know very well, in the last few videos we also solved the various numerical problem. The first numerical problem are related to the calculation of the amount of annual depreciation with the help of original cost, scrap value and useful life. Thereafter we will solve the question related to the machinery account and depreciation account by original cost method. Thereafter, we will discuss the numerical problem related to the sale of the assets and the calculation of the profit and loss account. And same type of numerical question will also solve by us by the written down value method. At the last, when we are talking about the written down value method, in the last video we already discussed and solved the numerical problem which covered and which discussed the numerical problem which include the purchase of more than one assets. In the previous video you can see the numerical problem is totally based on the purchase of the various assets and sale of the assets. जब आप कुछ पिछले वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यू कैन सी दैट कि वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पहले ईयर आपने दो मशीनरी खरीदी, सेकेंड ईयर में आपने एक और मशीनरी खरीद ली और थर्ड ईयर में आपने फर्स्ट मशीनरी का पार्ट बेच दिया और फिर थर्ड ईयर के लास्ट में आपने जो बाकी बची हुई मशीनरी थी उस पर डेप्रिसिएशन निकाला और जो फर्स्ट मशीनरी का जो कुछ पार्ट सेल हुआ था उस पर भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट किया और मेथड कौन सा था? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. बट टुडे वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम which are related to the concept purchase of more than one assets, but the method is different, that is a written down value method. यानी आज हम लोग एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे. उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या होगा कि एक से ज्यादा एसेट्स हम लोग परचेस करेंगे और एसेट्स को सोल्ड भी करेंगे, बट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो भी फिक्स रहेगा, बट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड. So in today's video, without creating any kind of delay, let's move to the practical problem. In this practical problem, first of all we treat the treat the transaction in which we purchase more than one assets and thereafter we sold the part of the machinery. We cannot sold the whole machinery, we cannot sold the whole assets, we sold the part of the assets and thereafter we will calculate the sale on profit or loss on the sale of the machinery. So let's we go to solve this practical problem. So the next question is illustration number 17. You can see in the screen as an image a firm whose books are closed on 31st March. यहाँ पे देखिए बुक कब क्लोज हो रही है? 31st March. It means company followed the financial year, नॉट अ कैलेंडर ईयर. यानी कैलेंडर ईयर में आप बुक कब क्लोज होता है? 31 दिसंबर को. यहाँ बुक कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को.
परचेज मशीनरी फॉर 60,000 ऑन 1 अप्रैल 2011, यानी फर्स्ट ईयर उसने 1 अप्रैल 2011 को मशीनरी खरीदा 60,000 रुपीज का। एडिशनल मशीनरी वॉज एक्वायर्ड फॉर रुपीज 10,000 ऑन 1 अप्रैल 2012। उसके बाद आपने नेक्स्ट ईयर फिर एक और मशीनरी खरीदा, कितने में? 12 फॉर 10,000 ऑन 1 अप्रैल 2012। कितने में खरीदा? 31,000। एंड देयर आफ्टर 31,000 रुपीज की एक और एडिशनल मशीनरी खरीदी, दैट इज 30 सितंबर 2012। So you can see that firstly you purchase the machinery on 1st April 2011, machinery number 1. Thereafter you will again purchase the machinery, that is 1st April 2012 for rupees 10,000, and again you will purchase the assets, the number third, that is 31,000 on 30 September 2012, and thereafter on 1st April 2014 a part of the machinery purchased for 10,000, यानी 1 अप्रैल 2014 को आपने 10,000 रुपए की मशीनरी जो 1 अप्रैल 2011 में खरीदी थी, अ पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज फॉर रुपीज 10,000 ऑन 1 अप्रैल 2011, यानी 2011 में अप्रैल 1 में आपने कितनी की मशीनरी खरीदी थी? 60,000 रुपीज की। उसमें से 10,000 वाली मशीनरी बेच दी, यानी 1/6 पार्ट आपने सेल कर दिया। कितने में सोल्ड कर दिया? फॉर रुपीज 5,000। ओके, सो आपने पहले साल एक मशीनरी खरीदी, दूसरे साल 2 मशीनरी कर दी और तीसरे साल अपने मशीनरी को सोल्ड कर दिया। ओके, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% से, एंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिटन डाउन वैल्यू। क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं फॉर योर कन्वीनियंस। किसके आगे जोड़ लीजिएगा? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एज्यूमिंग rate of depreciation at the rate of 10% by written down value method. Once again, please note down, prepare machinery account assuming rate of depreciation at the rate of 10% by written down value methods. So let's we solve this question without create any kind of delay. So let's go. Before solving this question, first of all we prepare the machinery account. सबसे पहले हम लोग मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ मशीनरी। ओके, डेट विल बी डेट, particulars and amount, date, particulars and amount. So you know that on 1st April 2011 first of all you purchase the assets, and one more thing जो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में, क्या कि आपका अकाउंट कब क्लोज होगा? 31st मार्च, नॉट ऑन 31st दिसंबर। ओके, सो 2011 में आपने मशीनरी खरीदा अप्रैल 1 में टू बैंक। फर्स्ट मशीनरी परचेस किया, क्योंकि यू नो वेरी वेल इस क्वेश्चन में आप कई मशीनरी परचेस कर रहे हो, और द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% एंड मेथड इज यस रिटन डाउन वाली मेथड। कितनी की मशीनरी? फर्स्ट 60,000। यू नो वेरी वेल फर्स्ट ईयर का एंड कब होगा? 2012 मार्च 31 पे एंड होगा, तो आप इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे कितना? 60,000 सिर्फ एक मशीनरी है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, द वैल्यू इज 6,000, एंड फिर आप क्या करोगे? बैलेंस निकाल लोगे। ओके, फर्स्ट ईयर कंप्लीट। फिर आप इस बैलेंस को यहां ब्रॉट डाउन करोगे 2012 अप्रैल 1 में टू बैलेंस BD 54,000, and now on April 2012 you can see that on your screen फिर आपने एक मशीनरी खरीदी है अप्रैल 1 2012 को ही टू बैंक, एक और मशीनरी उसी डेट को परचेस की है। कितने की मशीनरी है? मशीनरी फॉर रुपीज 10,000। फिर सेम ईयर 2012 में ही आपने फिर एक और मशीनरी कर दी ऑन 30 सितंबर 30, फिर आपने थर्ड मशीनरी परचेस कर ली। कितने की थर्ड मशीनरी है? द थर्ड मशीनरी वैल्यूज इज 31,000।
अब यू नो वेरी वेल 31 दिसंबर तक कुछ नहीं हुआ था, फिर 2013 मार्च 31 पे आप क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। बट द फैक्ट इज कि यू हैव अ 3 एसेट्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट वाले पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा, सेकेंड वाले पे भी लगेगा और थर्ड वाले पे भी लगेगा। तो जब आप फर्स्ट वाले पे डेप्रिसिएशन लगाओगे तो कितना लगाओगे, द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एसेट दैट इज 54,000, 54,000 का कितना परसेंट, 10%, दैट इज 5,400। ओके। और जब आप सेकेंड वाले पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, सेकेंड वाले पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करोगे, 10,000 इंटू 10%। अब आप देखो खरीदे का वो फर्स्ट सेकेंड वाली मशीनरी अप्रैल 1 में, तो अगर काउंट करो तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 12 महीने आ रहा है। यानी आपने 10,000 वाली मशीनरी पूरे साल भर यूज की है, पूरे साल भर आपने मशीनरी यूज की है। अब रही बात थर्ड मशीनरी, यू कैन सी दैट थर्ड मशीनरी जो है वो कितने में परचेस की आपने, 31,000 रुपीज में, और उस पर आप कितना परसेंट लगाओगे, 10%। बट फैक्ट इज दैट कि डेप्रिसिएशन कब से कब तक लगेगा, सितंबर 30 है, तो सितंबर 30 का आप काउंट करोगे कब तक, मार्च 31, तो सितंबर तो काउंट होगा नहीं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी आप 6 मंथ का इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना आएगा फॉर द थर्ड मशीनरी, थर्ड मशीनरी की वैल्यू आएगी दैट इज you will take the help of calculator. So 31,000 10% 6 month का आएगा 1,550 rupees. Okay, and thereafter you know very well आप क्या करोगे, at the end of the year बैलेंस निकालोगे, but you have not only one assets, you have a 3 assets, assets number 1, assets number 2 and assets number 3। अगर आप assets number 1 में देखो तो कितना हो जाएगा, 554,000 माइनस 5,400, सेकेंड में 10,000 माइनस 1,000, 10,000 माइनस 1,000, और थर्ड मशीनरी का 31,000 माइनस 1,550। ओके, सो यू कैन सी दैट द बैलेंस ऑन 31st March 2013 इज फॉर द फर्स्ट मशीनरी 54,000 रुपीज का बैलेंस था फर्स्ट मशीनरी का, उसमें से डेप्रिसिएशन कितना माइनस हुआ, 5,400। सो नाउ 48,600 द बैलेंस ऑन सेकेंड ईयर फॉर द फर्स्ट मशीनरी, दैट इज 48,600। फॉर द सेकेंड ईयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेकेंड मशीनरी, दैट इज 10,000, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ, 1,000। सो द बैलेंस ऑफ द सेकेंड मशीनरी ऑन सेकेंड ईयर दैट इज 9,000। 31,000 रुपीज की थर्ड मशीनरी थी, उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, दैट इज 1,550, और उतनी वैल्यू डिडक्ट करने के बाद आपके सेकंड मशीनरी की वैल्यू आई दैट इज 29,450। और आप दोनों साइड को इक्वल करते हो, 54 10 एंड 31 को ऐड करने में कितना आता है, 95,000, एंड यू विल चेक दिस क्वेश्चन, तो इधर का भी टोटल 95,000 आएगा। एंड नाउ वी विल मूव टू द थर्ड ईयर, इसके बाद हम लोग थर्ड ईयर में जाएंगे। एंड यू नो वेरी वेल इन द थर्ड ईयर हुआ क्या, थर्ड ईयर में आपके साथ क्या हुआ है कि आपने थर्ड ईयर में 1 अप्रैल 2014 को यानी 14 को आपने फर्स्ट मशीनरी का जो पार्ट है, जो फर्स्ट मशीनरी आपने परचेज की थी 60,000 रुपीज की जो आपने मशीनरी परचेज की थी, उसका 1/6 पार्ट सोल्ड कर दिया। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऑफ उसमें से सिर्फ आपने टोटल मशीन सोल्ड नहीं की है, उसमें से 10,000 वाली मशीनरी सोल्ड कर दी, क्योंकि आप मशीनरी कंपोनेंट में खरीदते हो। मान लो जैसे आपने 60,000 मशीनरी के 6 कंपोनेंट खरीदे, तो एक कंपोनेंट कितने का पड़ा, 10,000 रुपीज का, तो आपने 10,000 वाले वो कंपोनेंट को आपने सेल कर दिया 5,000 में, तो आपने टोटल मशीनरी तो सोल्ड नहीं की ना, आपने 60,000 में से कितनी मशीनरी सोल्ड कर दी, 10,000 वाली, तो कितना पार्ट आपने मशीनरी का सोल्ड कर दिया, 1/6 सोल्ड कर दिया। कब सोल्ड किया, 1 अप्रैल 2014 में सोल्ड किया। ठीक, तो 1 अप्रैल 2014 में पहले जाएंगे, बैलेंस ये वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद सेल का प्रोसीजर करेंगे। ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस अगेन वी विल ड्रॉ फॉर्मेट, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। एंड लास्ट ईयर का जो बैलेंस है ऑन 31 मार्च 2013 वो मूव होगा 2013 अप्रैल 1 में टू बैलेंस बीडी के नाम से। ओके, अब फर्स्ट मशीनरी, सेकेंड मशीनरी, थर्ड तीनों मशीनरी को हम बैलेंस डाउन करेंगे।
फर्स्ट मशीनरी का है 48,600, सेकंड मशीनरी का आएगा 9,000 एंड थर्ड मशीनरी का आएगा 29,450। अब आप क्या करो, 1 अप्रैल 2014 को आप सेल कर रहे हो, 1 अप्रैल 2014 को सेल कर रहे हो, सॉरी 2013 में सेल नहीं हो रहा है, यानी आप फिर से एक बार इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तभी तो जाके 14 अप्रैल बनाएगा, फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 48,600 का 10% यानी 4860, 9,000 का 10% दैट इज 900, थर्ड 29,450 का 10% 2,945। यहाँ देखिए थोड़ा सा केयरफुली डेट को लेकर रहिएगा कि 2013 का जो ब्रॉड डाउन होगा, लास्ट ईयर जो 2013 आया था उसका जो ब्रॉड डाउन होगा वो किस ईयर में होगा आपके, वो होगा अप्रैल 1 2013। बट आप एसेट्स कब सोल्ड करो, अप्रैल 1 2014 यानी अभी एक साल बाद। तो एक साल बाद के लिए पहले आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, उसका बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस भी करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे आएगा, यू नो वेरी वेल, इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे, इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे, इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे। सो बैलेंस कितना आएगा, फर्स्ट की वैल्यू है 48,600 माइनस 4860, तो ये आएगा 43,740। सेकेंड जो है उसका है आपका वैल्यू 9,000 माइनस 900 दैट इज 8,100। थर्ड वाले का कॉस्ट है 29,450, कॉस्ट कह लो या बुक वैल्यू कह लो, उसमें से डेप्रिसिएशन कितना लग गया है, दैट इज 2,945, तो जाएगा 26,505। क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू है ना, तो उस पर डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होता है आपका बुक वैल्यू पे, और बुक वैल्यू ये सारी है, इसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बट ओरिजिनल कॉस्ट में हम डेप्रिसिएशन उसी पे लगाते हैं जिसपे उसको परचेस किया गया होता है। इधर का टोटल आएगा 87,050, इधर भी आएगा 87,050। ओके, सो ये आ गया बैलेंस। अब ये खत्म हो गया आपका कौन सा ईयर, मार्च 31 2014। अब इसको ब्रॉड डाउन कब करेंगे, 2014 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब बैलेंस कौन सा होगा, ये वाला, फर्स्ट का 43740, सेकेंड का 8100, थर्ड का 26505। अब आप क्या कर रहे हो, अप्रैल 1 2015 को 14 को सॉरी अप्रैल 1 2014 को आप पार्ट ऑफ द मशीनरी, मशीनरी का एक पार्ट, ठीक है, आप सेल कर रहे हो। कितने में सेल कर रहे हो, तो आपने 1/6 पार्ट मशीनरी का सोल्ड कर दिया। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि टोटल मशीनरी थी 60,000 की, आपने उसके में से कितने का पार्ट सोल्ड कर दिया, 10,000 का, तो आपने सेल कितने का किया, 1/6 पार्ट। और कब सेल कर रहे हो, द डेट ऑफ द सेल इज अप्रैल 1। तो आप बैलेंस डेट देख लो, बिगनिंग ऑफ द ईयर कब हुई, अप्रैल 1 में, अब सेल भी कब हुई, अप्रैल 1 में। सो यू नो वेरी वेल, एट द टाइम ऑफ सेल हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन ही चार्ज करते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल फर्स्ट ऑफ ऑल वी चार्ज द डेप्रिसिएशन, कब से कब तक का, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ सेल। बिगनिंग कब हुई है, अप्रैल 1, सेल भी कब है, अप्रैल 1, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, नहीं सर, बाय बैंक। कितने में सेल कर रहे हो, 5,000। अब क्वेश्चन इज दैट कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो मैंने आपको एकदम सिंपल बताया, आप टोटल मशीनरी सोल्ड करो, नहीं सर, सिर्फ कितना सेल कर रहे हैं, वी सोल्ड ओनली 1/6 एसेट्स। उस एसेट्स की टोटल बुक वैल्यू कितनी है, सर द टोटल बुक वैल्यू इज 43,740। आप 43,740 में से सिर्फ कितना सेल करो, 1/6। 43,740 में से आप सेल कितना कर रहे हो, ओनली, यस, ओनली 1/6। तो 1/6 कितना आएगा, लेट्स वी कैलकुलेट दी वैल्यू, 43,740 डिवाइडेड बाई 6, 7,290, यानी प्रेजेंटली उसकी बुक वैल्यू है 7,290 एंड यू कैन सी दैट आप सेल कितने में कर रहे हो, 5,000 में। जब आप उसको 5,000 में सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर ये तो लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, यू विल टेक दिस 7290 माइनस 5,000, कम पे सेल कर रहा हूं 2290। इसको आप प्रॉपरली लिखोगे, इसको लिखोगे वर्किंग नोट में, बुक वैल्यू ऑफ 1/6 मशीनरी, बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019 14
डेट आप इसको थोड़ा मैं क्लियरली लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। ठीक, आप इसको वर्किंग नोट में क्या लिखोगे, बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2014 ऑफ 616 मशीनरी कितना आया था, 43,740। ये आप जल्दी यही करोगे, मेरे पास स्पेस की कमी है बट आपके पास स्पेस की कोई कमी नहीं है। स्पेस मतलब हवाई ऊपर जाने वाला नहीं, स्पेस मतलब ये जगह की बात हो रही है यहाँ पे। तो 43,740 का 16 आएगा आपके लिए, कितना आ रहा है 16, अभी मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया भी था। 740 का 16 आएगा 7,290, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आई विल चेक इट, यस 16 आएगा 7,290। आपने ये लिखा लाइन वर्किंग नोट में। दूसरा क्या लिखोगे, प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट्स। सो लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट्स के लिए आप क्या लिखोगे, फिर कैलकुलेट करोगे 7,290 माइनस 5,000, तो उसका लॉस कितना आएगा 2,290। तो लॉस कितना आया 2,290 रुपीज का लॉस आया। और लॉस को कहाँ लिखते हैं सर, ये तो बहुत आसान है, आपने एसेट सोल्ड कर दी, काम खत्म। हाँ सर काम खत्म नहीं, यही तो मैं जानना चाहता था, काम अभी खत्म नहीं हुआ। काम कब खत्म होगा, जब आप लास्ट ईयर, क्योंकि 2014 की एंडिंग कब होगी 2015, 2015 में आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे, फिर बैलेंस कैलकुलेट करोगे, करोगे ना, विदाउट बैलेंस आप कैसे काम कर सकते हो कोई चीज। तो यू कैन सी दैट इन दिस क्वेश्चन हमें क्या करना होगा, पहले इसको मैं थोड़ा सा बैलेंस कर देता हूं आपके लिए। ओके, सो आप अब डेप्रिसिएशन लगाओगे, फर्स्ट मशीनरी, सेकेंड मशीनरी, थर्ड मशीनरी। बट जब फर्स्ट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 43,740 है कॉस्ट, उसका कितना पार्ट सोल्ड हो चुका है 16, तो बचा कितना 56, 16 तो सोल्ड हो गया है, बचा कितना 56, उसका सिर्फ कितना परसेंट लगेगा 10%। सेकेंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना लगेगा सर, सेकेंड वाली डेप्रिसिएशन पे तो पूरा लगेगा, उस पे तो नहीं सेल किया, यस गुड। उसकी बुक वैल्यू कितनी है, उसकी बुक वैल्यू है 8,100 का 10%, और थर्ड वाली मशीनरी 26,505 का 10%। थोड़ा सी स्पेस, एक्चुअली ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन जो है वो स्पेस चाहता है, और जब तक हम सारे फैक्ट्स आपको एक जगह नहीं दिखाएंगे तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने इसको जूम किया है। आपने इस साल किया क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो क्लोजिंग बैलेंस था 2014 31 मार्च का, आपने उसे ब्रॉट डाउन किया ऑन अप्रैल 1 2014, एंड यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको करना क्या था, अप्रैल 1 को ही इसका 1/6 पार्ट सोल्ड करना था, तो आपने सोल्ड कर दिया बाय बैक 5,000। फिर निकाला कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी, यानी बुक वैल्यू क्या होगी, तो बुक वैल्यू आपने निकाला 43,740 का 16 निकाला, तो आपको पता चला यू विल फाइंड दैट 7,290 रुपीज इज द बुक वैल्यू ऑफ 1/4/2014 ऑफ 16 मशीनरी। यानी इस मशीनरी का जब 16 निकाला तो पता चला कि उसकी बुक वैल्यू आज के दिन कितनी है 7,290, बट हम उसको सोल्ड कितने में करें 5,000, तो जितना पैसा कम मिला वो हमारे लिए लॉस हो गया। एंड देयर आफ्टर वी विल चार्ज दी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, जो बची मशीनरी है, पहले वाले में से 16 सोल्ड हो गया, बचा कितना 56, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सेकंड वाले की कॉस्ट कितनी थी 8,100, उसका 10% निकाल के लगाएंगे। थर्ड वाली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 26,505 है, उस पर कितना परसेंट लगाएंगे 10%। तो सेकंड वाले का तो क्लियर है, थर्ड वाले का भी क्लियर है, लेकिन जब हम फर्स्ट वाले पे लगाएंगे थोड़ा सा हमें जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन के लिए यू नो वेरी वेल 43,740 का 16 सोल्ड हो गया, बचा 56, तो इंटू 5/6 इंटू 10/100 दैट इज 3645। अब क्या करोगे सर, बैलेंस करेंगे। बैलेंस क्लियर है, बैलेंस तो मैंने लास्ट बार भी बताया था आपको बैलेंस कैसे करते हैं इस सिचुएशन में, बैलेंस CD फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक, फर्स्ट का बैलेंस कैसे निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 43,740 जो फर्स्ट मशीन थी 43,740, यहाँ स्पेस खाली इसलिए मैं यहाँ यूटिलाइज कर रहा हूँ। इस वाले में से पहले आपने सोल्ड कितने का कर दिया, इसमें से मैंने सोल्ड कर दिया 7,290,
वो चला जाएगा, और डेप्रीशिएशन कितना लगाया 3645, यानी 43,740 में से मशीनरी कितनी बचेगी आपके पास। द फर्स्ट बैलेंस value or book value of first machinery is to be calculated is that the opening value which are given 43,740 minus 7290, क्योंकि 7290 की आपने एसेट सोल्ड कर दी, 740 minus 7290 minus 3645, that is 32,805। तो आपकी फर्स्ट मशीनरी की बुक वैल्यू पता चल गई, अरे बुक वैल्यू पता चल गई ऑन 31 मार्च 2050। अब चलते हैं सेकंड वाले पे, इसको बाहर ही लिख देते हैं डायरेक्ट 32,805। ठीक, यस सर। अब सेकंड वाले पे देखते हैं, सेकंड वाले की वैल्यू कितनी थी, ओपनिंग वैल्यू 8,100, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा 810, इसको डिडक्ट कर देंगे। थर्ड वाले में 26,505, 26,505 में से डेप्रिसिएशन कितना लग गया 2651, 2651, तो ये हो जाएगा 23,854, 23,854। बट एग्जाम में आपको खुद से कैलकुलेशन करना है। डेप्रीशिएशन जो है वो बहुत इजी चैप्टर है, बट टफ ये इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस होती हैं, लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन, एंड फॉर द कैलकुलेशन पर्पस यू विल हैव टू यूज योर कैलकुलेशन पावर, यू विल एनहांस योर कैलकुलेशन पावर। सो इसीलिए कहा जाता है कि कॉमर्स में मैथमेटिकल इशू बहुत ज्यादा होता है, आपकी कैलकुलेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। इसका टोटल आएगा 78,345, ओके 78,345। किसको सो टोटल गया, जो बैलेंस आया था फर्स्ट सेकंड थर्ड का, और इधर का भी टोटल उतना ही आएगा, यू विल चेक इट, ऑटोमेटिक इधर का इक्वल भी आएगा, ओके। सो एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्टली यू कैन सी दैट द सॉल्यूशन, आप पहले सॉल्यूशन देखो कितना बड़ा है। फर्स्टली इन द लेफ्ट साइड यू कैन सी दैट मशीनरी काउंट का फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, और फिर आफ्टर दैट यू विल सी दैट ऑन द राइट साइड थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। यू कैन सी दैट डेप्रीशिएशन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कितने स्पेस की जरूरत पड़ेगी। एटलीस्ट जब आप पेपर पे या कॉपीज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव अ प्रॉपर स्पेस। सो स्पेस के लिए काफी कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस you will take this. So one by one I will revise this question. So you can see that in the first year you can easily see that first year हमने assets purchase की फर्स्ट 60,000 रुपीज की, उस पर फिर डेप्रीशिएशन चार्ज किया 10% से, वो बैलेंसिंग वाली आ गई 54,000। सेकेंड ईयर, इन द सेकेंड ईयर यू कैन इजीली सी दैट कि अगेन वी परचेज द सेकेंड एसेट्स एंड थर्ड एसेट्स, और फिर जब बुक को क्लोज किया तो फर्स्ट एसेट्स की बुक वैल्यू पे डेप्रीशिएशन चार्ज किया, और सेकेंड पे भी चार्ज किया, थर्ड पे भी चार्ज किया, बट सेकेंड वाले को पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज किया क्योंकि विच आर परचेज ऑन अप्रैल 1, और थर्ड वाले को सितंबर 30 था, सो दैट्स व्हाई अप्रैल सितंबर का अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, दैट इज 1550। उसके बाद बैलेंस क्रिएट किया, यानी इन सब में से इनके डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, बैलेंस आ गया। इसी पे हम लोग नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे, यू नो वेरी वेल, ओके। So in the next year first of all मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, एंड देयर आफ्टर डेप्रीशिएशन चार्ज किया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का, इसी का 10%। फिर बैलेंस फाइंड आउट किया कैसे, इन सब में से इनके डेप्रीशिएशन को माइनस कर दिया, तो बुक वैल्यू निकल। बुक वैल्यू का मीन्स क्या होता है, या रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है, ओपनिंग वैल्यू या ओपनिंग वैल्यू और ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीशिएशन, तो आ गई बुक वैल्यू लास्ट ही। फिर इन सारे बैलेंसेस को हम लोगों ने उठाकर कहाँ ट्रांसफर कर दिया, नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर में आपने बुक को सोल्ड किया। लास्ट ईयर में आपने एसेट्स को क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया। तो यू कैन सी दैट पहले मैंने बैलेंस लिखा, फिर फर्स्ट एसेट्स को सोल्ड किया, कितनी एसेट्स सोल्ड की थी, ओनली 16, तो उसका 16 वैल्यू कैलकुलेट किया और उसके सेल वैल्यू से कंपेयर किया, तो हमें पता चला कि हमें 2290 का लॉस हो गया। आफ्टर दैट इन तीनों एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, बट द फैक्ट इज दैट
कि फर्स्ट मशीनरी का पूरा पार्ट सोल्ड नहीं हुआ था, सिर्फ 1/6 सोल्ड हुआ था, तो बचा कितना था 5/6, उसका 10% डेप्रिसिएशन भी निकालना है हमको। 8,100 का 10% डेप्रिसिएशन निकाला, 26,505 का 10% निकाला 2651, फिर उसके बाद हमने उसके बैलेंसेस निकले। फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस निकालना थोड़ा क्रिटिकल होता है। कैसे? 43,740 है, उसमें से जितनी एसेट सोल्ड कर दी, 43,740 में से मैंने 7,290 की एसेट सोल्ड कर दी, और डेप्रिसिएशन कितना लगा 365, तो घटाने के बाद आया दैट इज 32805। But for the second machine and third machinery, we will charge the depreciation at the rate of 10%. You can easily see that the depreciation 810, 2650, and again it will be deducted from both the machinery. Okay, so ये है पूरा सॉल्यूशन आपके सामने इस क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके सामने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए टर्म के साथ आएंगे, डेट इज अ preparation of provision for depreciation account and asset disposal account. So I hope today we cleared all the doubts and all the topics very easily. Apart from this, if you have any doubts or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.